کہتے ہیں ذائقے صرف زبان پر نہیں یادوں میں بھی بستے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کھانے نہیں بناتے، وہ دلوں کو بھی جیت لیتے ہیں۔ پاکستانی ٹی وی کے اسکرینز پر کئی ایسے نام جگمگاتے رہے جنہوں نے نہ صرف ہمیں مزیدار کھانے سکھائے بلکہ اپنی شخصیت، خلوص اور محنت سے ہر ناظر کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند قابل احترام عظیم پاکستانی شیفز کو یاد کریں گے جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، مگر ان کا ذائقہ، ان کا انداز اور ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریں۔ نمبر 1، یہ پوری فیملی انجوائے کرے تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ٹپ اینڈ ٹرک کے ساتھ۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف کامیاب نہیں ہوتے، وہ نشان راہ بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک باوقار، باصلاحیت اور مہربان شخصیت تھی ناہید انصاری۔ پاکستان کی کچن انڈسٹری میں جس مقام پر وہ پہنچی، وہ صرف قسمت نہیں بلکہ محنت، خلوص اور فن کا نچوڑ تھا۔ ناہید انصاری کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ وہ ایک باوقار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بچپن ہی سے ان میں کھانے پکانے، سلیقہ مندی اور ہوم ڈیکوریشن کا خاص ذوق پایا جاتا تھا۔ یہی شوق بعد میں ان کا پیشہ بھی بنا اور پھر وہ پاکستان بھر کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی۔ ناہید انصاری نے اپنے کریئر کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا۔ اس وقت پاکستان میں ٹی وی پر کوکنگ شوز کا تصور اتنا عام نہیں تھا، لیکن ناہید آپا نے نہ صرف اس میدان میں قدم رکھا بلکہ اس میں نیا معیار قائم کیا۔ ان کا بولنے کا انداز نرم، سمجھانے کا انداز سادہ اور کھانے بنانے کا طریقہ بے حد مہارت بھرا ہوتا تھا۔ جلدی وہ پاکستان بھر میں مشہور ہو گئی اور ناہید آپا کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ ٹی وی پر کامیابی کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو تعلیم میں ڈالا اور کریٹو ہینڈز بائی ناہید انصاری کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جہاں وہ نوجوان لڑکیوں اور گھریلو خواتین کو کوکنگ، بیکنگ، ٹیبل سیٹنگ اور ہوم مینجمنٹ جیسے کورسز سکھاتی تھی۔ ان کی فہم و فراست، زندگی کے تجربات اور مہمان نوازی کے انداز نے انہیں پاکستان کی مارٹا اسٹیورٹ کا لقب دلایا۔ وہ نہ صرف کھانے بناتی تھی بلکہ خوبصورتی سے جینے کا ہنر سکھاتی تھی۔ ناہید انصاری کافی عرصے سے کینسر جیسے مزری مرض میں مبتلا تھی۔ بے حد خاموشی اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس بیماری کا سامنا کیا اور کبھی شکایت کا لفظ زبان پر نہ لائی، لیکن افسوس بالآخر 4 جولائی 2024 کو وہ اس جان لیوا بیماری سے جنگ لڑتے لڑتے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کی خبر نے نہ صرف ان کے خاندان، دوستوں اور شاگردوں کو غمگین کیا بلکہ پاکستان کی پوری شوبز اور کوکنگ انڈسٹری سوگ میں ڈوب گئی۔ نمبر 2، دوستو یہ گپ شپ کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا ہمارے پروگرام میں۔ ہم واپس فی الحال پھر ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے فن سے نہیں بلکہ اپنے انداز، خلوص اور محبت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں۔ فرح جہاں زیب ایسی ہی ایک باکمال شخصیت تھی۔ وہ نہ صرف ایک ماہر شیف تھی بلکہ ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر بھی تھی۔ ان کی مسکراہٹ، نرم لہجہ اور منفرد انداز نے انہیں پاکستان کے ہر گھر میں مقبول بنا دیا تھا۔ فرح جہاں زیب نے اپنے کریئر کا آغاز کراچی سے۔ ان کی دلچسپی کھانے پکانے اور فیشن ڈیزائننگ میں تھی، جسے انہوں نے اپنے پیشے میں تبدیل کیا۔ انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر کوکنگ شوز کی میزبانی کی، جن میں فوڈ آفٹر نون ود فرح اور ذائقہ دار شامل ہے۔ فرح کی شادی جہانزیب خان سے ہوئی تھی، تاہم بعد میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نام فرح آنیہ عالم رکھ لیا۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کے ساتھ وہ لاہور منتقل ہو گئی تھی تاکہ وہاں اپنا علاج کروا سکے۔ فرح جہانزیب بریسٹ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اس بیماری کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ اپنے مداحوں کو اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے فیس بک پر ایک جذباتی پیغام شیئر کیا: اللہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو بڑے مقصد کے لیے چنتا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں ایک نایاب بیماری میں مبتلا ہو گئی جہاں دوائیاں کام نہیں کر رہی تھی اور تمام ڈاکٹروں نے کہا میں ایک نا امید کیس ہوں۔ اس وقت میرے معزز استاد ڈاکٹر محمد عالم نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے اللہ پر ایمان مضبوط کرنے کی تلقین کی۔ ان کی رہنمائی اور میری ماں کی دعاؤں سے میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ افسوس کہ فرح جہانزیب 21 جولائی 2014 کو 45 سال کی عمر میں کینسر کے باعث انتقال کر گئی۔ ان کی وفات کی خبر نے ان کے مداحوں، ساتھیوں اور شاگردوں کو غمزدہ کر دیا۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 3، The biggest thing for me was to inspire other young Pakistani girls. کچھ لوگ دنیا میں مختصر وقت کے لیے آتے ہیں مگر اپنی روشنی سے دوسروں کی زندگیاں روشن کر جاتے ہیں۔ فاطمہ علی ایسی ہی ایک باکمال شخصیت تھی۔ صرف 29 برس کی عمر میں کینسر کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فاطمہ علی پاکستان میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ انہیں بچپن سے ہی کھانا پکانے کا شوق تھا اور اسی شوق نے انہیں امریکہ تک پہنچایا، جہاں انہوں نے ایک نامور کوکنگ اسکول میں داخلہ لیا اور ایک ماہر شیف کے طور پر اپنا سفر شروع کیا۔ ان کے ہر کھانے میں پاکستان کی ثقافت اور ذائقے کی جھلک نمایاں ہوتی تھی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے وطن کو فخر کے ساتھ اپنے کھانوں میں پیش کیا۔ فاطمہ کو عالمی شہرت ٹاپ شیف نامی امریکی کوکنگ ریئلٹی شو سے ملی، جہاں نہ صرف ان کے کھانے بلکہ ان کی شخصیت، انداز گفتگو اور مسکراہٹ نے لاکھوں دل جیت لیے۔ مگر اسی دوران انہیں ایک نایاب ہڈیوں کے سرطان یوئنگ سرکوما کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور مہلک مرض ہے،
लेकिन फातिमा ने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने निहायत बहादुरी के साथ बीमारी का सामना किया और अपने इंस्टाग्राम और टीवी इंटरव्यूज में खुलकर इस पर बात। एलन डीजेनेरेस की मशहूर शो एलन पर अपनी बीमारी और ख्वाहिशात की फहरिस्त बकेट लिस्ट शेयर करते हुए वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास वक्त कम रह गया है तो मैं इसे खुशियों, मोहब्बत और जिंदगी के असल जायकों के साथ गुजारूं। फातिमा की जिंदगी में इनकी माँ फारिजा बेगम का किरदार किसी फरिश्ते से कम न था। बीमारी के दिनों में वो न सिर्फ इनकी देखभाल करती रही बल्कि इनका हौसला भी बनी। फातिमा अली की जिंदगी पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म हर नेम इज शेफ में फारिजा बेगम की आवाज शामिल है। जब फातिमा की तबीयत मजीद खराब हो गई तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों से दुआ की दरख्वास्त की। इसके बाद टॉप शेफ के इनके कई साथी अस्पताल में इनसे मिलने आए। बाद में इन सब ने सोशल मीडिया पर फातिमा की यादें, इनके साथ गुजारा वक्त और इनके मुस्बत असरात को खराज तहसीन पेश किया। 29 साल की जिंदगी बहुत छोटी लगती है मगर फातिमा अली ने जो मोहब्बत, हौसला और अपनी सकाफत के जायके दुनिया को दिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इन्होंने साबित किया कि बीमारी से कमजोर हुआ जा सकता है मगर हारा नहीं जाता। नंबर 4, इफ्तारी करीब है, चिकन बोटी बना ले। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने पाकिस्तानी घरों में सिर्फ खाने के जायके ही नहीं बल्कि मोहब्बत, सादगी और फने पकवान का रंग भरा। वो जो हर टीवी स्क्रीन पर नमूदार होता तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी शेफ जाकिर कुरैशी की, जिनका 2025 में कराची में इंतकाल हो गया। जाकिर कुरैशी 16 फरवरी 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके खून में ही जायका था क्योंकि इनके वालिद अब्दुल अजीज एक माहिर शेफ थे जो ब्रिटिश एयरवेज और PIA के लिए काम करते थे। यही वो माहौल था जहां जाकिर कुरैशी का ज़ौक़ परवान चढ़ा, लेकिन इन्होंने अपने वालिद की राह पर चलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। बाकायदा तालीम हासिल करके खानों के फन को साइंसी अंदाज में समझा और सिखाया। जाकिर कुरैशी का बाकायदा करियर 1980 में कराची के शेरटन होटल से शुरू हुआ। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन इनका जुनून, मेहनत और सीखने की लगन उम्र से कहीं बड़ी थी। बाद इन्होंने दुबई, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना में काम किया और अपनी तालीम मुकम्मल की। इन बैनुल-अक़वामी तजर्बात ने इनके खानों में बैनुल-अक़वामी जायके भर दिए जिन्हें वो बड़ी महारत से पाकिस्तानी मिजाज के मुताबिक ढालते रहे। शेफ जाकिर की टीवी पर पहली एंट्री 2000 की दहाई के वस्त में हुई और फिर इनका शो जाकिर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां लाखों पाकिस्तानी खाना पकाना सीखते, दुआएं देते और दिल से उनसे जुड़ते। वो सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक उस्ताद, दोस्त और खानदानी फर्द की तरह थे। ज़ुहैब आलिम जो इनके शो के प्रोड्यूसर रहे कहते हैं कि शेफ जाकिर की सबसे खास बात ये थी कि वो कम बजट में बेहतरीन खाने सिखाते थे। इनका मिशन था कि आम लोग आसानी से ये पकवान अपने घरों में बना सके। जाकिर कुरैशी ने चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और देसी खानों को सादा अंदाज में आम लोगों के लिए काबिल अमल बनाया। इन्होंने हर तबके के लोगों को खाना पकाने की तरकीब दी क्योंकि इनके मुताबिक पकवान सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, ये एक मोहब्बत भरा अमल है। जाकिर कुरैशी कुछ अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। इलाज के लिए वो अमेरिका भी गए लेकिन तबीयत संभल न सके। बिलाखिर 2025 में कराची में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 5, मैं हूँ आपकी अपनी कुकिंग एक्सपर्ट सारा रियाज। देखते रहिए टुनाइट्स मेन्यू मेरे साथ। पाकिस्तानी खानों की दुनिया में अगर किसी एक नाम को खालिस्तन जायके, मोहब्बत, सादगी और खुलूस की अलामत कहा जाए तो वो नाम है सारा रियाज का। एक ऐसी शख्स जिन्होंने सिर्फ खाना नहीं पकाया बल्कि अपने अंदाज़े गुफ्तगू, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट और आसान तरकीबों से लाखों दिल जीत लिए। मगर अफसोस अप्रैल 2014 में ये नर्म दिल, बासलाहियत और मेहरबान खातून छाती की कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई। सारा रियाज का शुमार पाकिस्तान की नामवर शेफ्स में होता है। वो 20 साल से जायद का तजर्बा रखती थी और खास तौर पर ARY डिजिटल के चैनल ARY ज़ौक़ से वाबस्ता थी। इनका सबसे मशहूर प्रोग्राम खाना पकाना था जो हफ्ते में 5 दिन नशर होता। वो न सिर्फ रोजमर्रा खानों की आसान तरकीबें बताती थी बल्कि सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक मशवरे भी देती थी। इनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी लोग इनके फैन थे। सारा रियाज ने कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में अपने घर पर एक छोटा सा तरबीती अदारा भी कायम किया जहाँ कई लड़कियाँ से प्रोफेशनल कुकिंग सीखने आती थी। इनका मकसद सिर्फ खाना सिखाना नहीं था बल्कि खवातीन को बाख्तियार बनाना और उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का हुनर देना था। यही वजह है कि सारा रियाज के हजारों शागिर्द आज भी इनकी दी गई तरबियत को याद करते हैं और इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। सारा रियाज एक अरसे से छाती की कैंसर में मुब्तला थी। अप्रैल 2014 में इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो अस्पताल मुंतकिल की गई। अफसोस कि वो इस जानलेवा मर्ज से ना लड़ सकी और जुमेरात की सुबह खाल की हकीकी से जा मिली। इनके शोहर ने इनके साथ हर कदम पर साथ दिया मगर इनकी कोई औलाद नहीं थी। सारा रियाज की वफात की खबर जैसे ही मीडिया पर आई, मदाहों का दुख और गम छुप न सका। ARY डिजिटल के नुमाइंदों, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज के मेजबानों और शेफ कम्युनिटी ने इनकी रहलत पर गहरे अफसोस का इजहार किया। नंबर 6, आज आप देख रहे हैं 12th एनिवर्सरी ऑफ मसाला टीवी और ये खुशी का दिन है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और चस्के खाने के लेते रहिए। जिंदगी कितनी गैर मुतवक्का है और मौत कितनी यकीनी। इंसान कब मुस्कुराते हुए आखिरी बार किसी तकरीब में नजर आएगा, कब इसकी आवाज खामोश हो जाएगी, कोई नहीं जानता।
ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ शेफ ताहिर चौधरी के साथ। 24 अक्टूबर 1965 को पैदा होने वाले ये बासलाहियत और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शेफ 7 अक्टूबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने से अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। शेफ ताहिर चौधरी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी एक माना हुआ नाम थे। इन्होंने इटली, फ्रांस और मुत्तहदा अरब इमारात में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और वहाँ से बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम और तजर्बा हासिल किया। वो फूड सेफ्टी और हाइजीन में बैनुल अक़वामी सनद याफ्ता थे और इसी शोबे में अपनी महारत के बाइस नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गए। पाकिस्तान में वापसी के बाद ताहिर चौधरी ने मसाला टीवी के साथ मुंसलिक होकर कुकिंग ऑन बजट जैसे मकबूल प्रोग्राम की मेजबानी की। इनका अंदाज़े गुफ्तगू, सलीका और पुरखुलूस लहजा नाज़रीन को बेहद पसंद आता था। शेफ ताहिर चौधरी ने अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह मसाला टीवी की 12वीं सालगिरह की तकरीब में गुजारी। इस तकरीब में वो न सिर्फ खुश मिजाजी से शरीक हुए बल्कि अपने मखसूस अंदाज में सबको खुश रखा, मगर किसी को क्या खबर थी कि ये इनकी आखिरी टीवी मौजूदगी हो। इस रोज दोपहर में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गए। वो लम्हा सिर्फ इनके घर वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक दिल दहला देने वाला सदमा था। जैसे ही इनकी वफात की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक कहराम मच गया। मसाला टीवी के साथी, मेजबान, शायकीन और फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गहरे दुख का इजहार किया। इनके साथियों ने कहा, ताहिर चौधरी सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक उस्ताद, एक रहनुमा और एक बावफा दोस्त थे। इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। नंबर 7, यही सोच के लाई तुम्हारे लिए मेरी अपनी ज़ुबैदा आपासनो। कहते हैं कुछ लोग सिर्फ अपना काम नहीं करते, वो दिल जीत लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहली सेलिब्रिटी शेफ, हर्बलिस्ट और घरेलू टोटकों की माहिर जुबैदा आपा इन्हीं में से एक थी। 4 जनवरी 2018 को वो दिल की बीमारी के बायस कराची में इंतकाल कर गई। इनके दुनिया से चले जाने के बाद हर पाकिस्तानी घर में एक खला महसूस हुआ। वो सिर्फ एक शेफ नहीं, एक औहद थी। जुबैदा तारीख 4 अप्रैल 1945 को हैदराबाद दक्कन, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई। 1947 में इनका खानदान पाकिस्तान हिजरत करके कराची के इलाके PIB कॉलोनी में बाद हुआ। इनके खानदान को इल्मो अदब का गहवारा कहा जाता था। इनके खानदान में शामिल शख्सियात में मारूफ ड्रामा निगार फातिमा सरिया बजिया, मुमताज शाहिरा जहरा निगार जो कि इनकी बहनें थी, मज़ाह निगार अदीब और मेजबान अनवर मकसूद इनके भाई हैं। जुबैदा आपा ने खुद हमेशा इस माहौल को अपनी कामयाबी की बुनियाद करार दिया। 1954 में तारिक मकसूद से पहली मुलाकात हुई जो इनके कजन थे। 1966 में दोनों की शादी हुई। इनका एक बेटा और एक बेटी है। जुबैदा आपा ने बाकायदा कुकिंग का आगाज इस वक्त किया जब वो और इनके शोहर घर पर दावतें रखते थे। इन्हीं में से एक दावत में मौजूद मेहमान ने इनके खाने से मुतासिर होकर इन्हें एक फूड एडवाइजरी सर्विस में काम की पेशकश की और यूं पाकिस्तानी कुकिंग इंडस्ट्री की तारीख बदल गई। 1990 की दहाई में जुबैदा आपा ने डालडा का दस्तरख्वां के जरिए टीवी पर कदम रखा और फिर हम मसाला पे लगने वाला शो हांडी, इसके अलावा FM 107, किचन मैजिक, आज के बाप जैसे बेशुमार प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। इन्होंने अपने बेटे हुसैन तारिक के साथ एक रेस्टोरेंट भी चलाया। जुबैदा आपा की खुशी लिबास, मैचिंग ज्वेलरी, बने समरे बाल और नर्म लहजा इनकी पहचान बन चुके थे। वो सिर्फ खाना नहीं पकाती, नाजरीन को जिंदगी जीने के तरीके सिखाते। जुबैदा आपा को सिर्फ शेफ नहीं बल्कि टोटके की माहिर के तौर पर भी जाना जाता था। वो घरेलू, समाजी, यहाँ तक कि सियासी मसाइल पर भी दिलचस्प, आजमूदा और हैरान कुन मशवरे देते। 4 जनवरी 2018 को जुबैदा आपा 72 बरस की उम्र में दिल की बीमारी के बायस कराची में इंतकाल कर गई। ये अफसोसनाक खबर इनके भाई अनवर मकसूद ने अपने सोशल मीडिया पर दी। इनकी नमाज जनाजा जुम्मा की नमाज के बाद सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। ये सच है कि जिस्म फना हो जाते हैं मगर जो लोग दूसरों की जिंदगियों में आसानियां बांटते हैं वो कभी नहीं मरते। हमारी ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है उन अजीम शेफ्स की मोहब्बत, मेहनत और यादगार खिदमात को सलाम पेश करने की। अगर आप भी इनमें से किसी शख्सियत से जुड़े हैं या इनकी कोई बात आज भी याद आती है, कौन सा शेफ था आपके दिल के सबसे करीब और किसके खाने बनाने का अंदाज आपके दिल को छू जाता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम ऐसी खलूस भरे लम्हात आप तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।